معاشی استحکام کے لیے بڑا فیصلہ، بڑی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس لگے گا۔ حکومت نے اعلان کر دیا سٹیل، سیمنٹ، شوگر، ٹیکسٹائل، آئل اینڈ گیس شامل، ہوابازی، فرٹیلائزر، LNG ٹرمینلز، بینکنگ سیکٹر، کیمیکل، بیوریجز اور سیکرٹ انڈسٹری بھی فہرست کا حصہ۔ ماہانہ کروڑوں روپے کمانے والوں پر بھی ٹیکس لگ گیا۔ سالانہ 15 کروڑ سے زائد آمدن پر 1%، 20 کروڑ سے زائد انکم پر 2% ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ 25 کروڑ آمدن پر شرح 3 اور 30 کروڑ پر 4% مقرر۔ پاکستان کو ان سنگین خطرات سے بچانے کے لیے یہ قومی اتحادی حکومت کے تمام زعماء نے مل کر مشاورت کر کے جرأتمندانہ فیصلے کیے، جس سے یقیناً شارٹ ٹرم میں مشکلات پیش آئیں گی، لیکن ان فیصلوں کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ نہ صرف ان مشکلات سے نکل آئیں گے بلکہ پاکستان قائد اعظم کی منزل پر رواں دواں ہوگا۔ اقتدار سنبھالا تو دو ہی راستے تھے، ریفارمز کر کے الیکشن کراتے یا سخت فیصلوں سے ملک کی معیشت سنبھالتے۔ اتحادیوں کی مشاورت سے فیصلہ کیا کہ سیاست نہیں ریاست بچائیں گے۔ سابق دور میں بدترین کرپشن ہوئی، معیشت دیوالیہ ہونے جا رہی تھی، اب ملک مشکلات سے نکل رہا ہے۔ سخت اقدامات کے سبب وقتی پریشانیاں ہیں، جلد آسانیاں بھی ہوں گی۔ عوام کو سبز باغ نہیں دکھائیں گے، کوشش ہے زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں۔ کوئی نئی شرط نہ لگی تو IMF کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کا معاشی ٹیم کے اجلاس میں اظہار خیال۔ ایران سے بجلی کا معاہدہ طے پا گیا، تفصیلات منگل کے روز کابینہ کے سامنے لائیں گے۔ بلوچستان کے مسائل کا حل اولین ترجیح، وفاقی حکومت نے صوبے کے لیے 100 ارب روپے سے زائد رقم مختص کی ہے۔ گوادر میں انفراسٹرکچر کی بہتری تک ترقی بے معنی ہے، وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ ماہی گیروں کے لیے 2000 انجن اور رہائشی کالونی کا اعلان۔ شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور صوبے کے ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ پاکستان میں 90 لاکھ ریٹیل کی دکانیں ہیں، ریٹیل ہول سیل کی دکانیں ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس میں سے 30-35 لاکھ دکانوں کو یا کم از کم 25 لاکھ دکانوں کو ہم نیٹ میں لے کر آئیں گے۔ ہم نے ایک نئی اسکیم کہی ہے جس کے تحت ان کا انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس دونوں کو فکس کر دیا ہے ان کے بجلی کے بل سے۔ 3000 سے لے کر چھوٹی دکان اور 10,000 سے بڑی دکان مانا ہم ان سے فکس ٹیکس لیں گے۔ اس کے بعد کوئی ان کے ساتھ سوال جواب نہیں ہوگا، FBR سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، بس یہ پیسے دے دو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی آسانی ہوگی۔ جو ڈیفالٹ کی نیچ پہ یہ لے کر آئے تھے PTI والے، اس سے ہم نے ملک کو بچایا ہے۔ 23 کروڑ عوام کا ملک، 23 کروڑ غیور عوام کا ملک، لیکن ایک مضبوط ملک، ایک طاقتور ملک، ایک نیوکلیر پاورڈ ملک انشاءاللہ تعالیٰ کہیں اب ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا ہے، اب ترقی کی طرف جائے گا۔ چھوٹے تاجروں اور ریسٹورنٹس پر بھی فکس ٹیکس لگانے کا اعلان۔ اخراجات زیادہ، وسائل کم ہیں، خسارہ پورا کرنے کے لیے ساری دنیا سے پیسے مانگنا پڑتے ہیں۔ عمران حکومت نے پونے 4 سال میں 71 برس کے برابر قرضہ لیا۔ اتحادی حکومت کے مشکل فیصلوں سے پاکستان بہتری کی طرف جائے گا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، چینی کنسورشیم کی جانب سے $2.3 ارب اسٹیٹ بینک کو موصول، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا ٹویٹ۔ ڈالر کی پھر اونچی اڑان، انٹر بینک میں قدر 25 پیسے بڑھ گئی، 207 روپے 48 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں 50 پیسے کمی کے ساتھ 208 روپے 50 پیسے میں ٹریڈ۔ اسٹاک مارکیٹ میں شدید منفی، انڈیکس 1665 پوائنٹ گر گیا، 41,045 پر کلوز۔ کالا ایک مہینے میں ہی 100 بلین جو آپ نے کہا ہوا، تو وہ تو آپ PSDB سے نکال دیتے تو آپ بڑھا دیتے، دیوالیہ بالکل نہ ہوتا۔ دیوالیہ تو آپ کی جو
इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है, इनकॉम्पिटेंस है, उसकी वजह से हुआ कि आपने उसके ऊपर एक्शन ही नहीं लिया। सुपर टैक्स के निफाज से महंगाई बढ़ेगी, तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। इम्पोर्टेड हुकूमत आवाम को गुमराह करने में मसरूफ। मुफ्ता इस्माइल मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं, शौकत तरीन का इल्ज़ाम। हुक्मरान नाकाम हो चुके, इनके पास कोई प्लान नहीं, शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। इमरान खान के दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर $6 अरब बढ़े। मौजूदा मुआशी टीम आवाम को कम चाय पीने के मशवरे दे रही है, असद उमर की तनकीद। अल्लाह का फजल है कि हम आहिस्ता आहिस्ता उन दिनों से या उन लैंड माइन से जो हमारे लिए पीटीआई ने बिछाई थी, हम जो है बाहर आ रहे हैं। और ज्यादा देर नहीं है, कोई हफ्तों की बात भी नहीं है, दिनों की बात है। इंशाअल्लाह ताला हालात जो है बेहतरी की तरफ चल निकलेंगे। जो पैसा कमाता है वो टैक्स भी दे, खुदा का वास्ता है अरकान असम्बली टैक्स चोरों के सिफारिशी ना बने। तहरीक इंसाफ की बिछाई सुरंगें उबूर कर ली हैं, इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को संभाल लिया। मुश्किल हालात में ऐसा बजट दिया जिसमें हर तबके के लिए रिलीफ है। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में तकरीर। हमने 3 महीने गैर आइनी हथकंडों का मुकाबला अल्लाह के फजल से किया, लेकिन हमने जो मुकाबला किया, हमने तमाम चीज़ें जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक की। 3 माह गैर आइनी हथकंडों का मुकाबला किया, किसी हठधर्मी और अना की परवाह नहीं। आवाम की खिदमत और तरक्की का अज़्म लेकर आए हैं। मरीजों को मुफ्त अद्वियात, नौजवानों को लैपटॉप और खवातीन को स्कूटीज मिलेंगी। PKLI का प्रोजेक्ट भी जल्द असली हालत में बहाल होगा। हमजा शहबाज का ऐलान। बनी गाला में बैठा शख्स लॉन्ग मार्च की आड़ में फिर इंतशार फैलाना चाहता है। आवाम के खिलाफ उठने वाले हर कदम आहिनी हाथों से रोकेंगे। वज़ीर आला पंजाब का असम्बली में इजहार ख्याल। चौदह नई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर्म की जा रही हैं इस कानून के मुताबिक। हर यूनियन काउंसिल 1 साल के अंदर 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए के तरक्याती काम अपना फैसले किया करेंगी बगैर किसी से पूछे। जमहूरी इस्तेहकाम के लिए इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकिली ज़रूरी। नए बल्दियाती एक्ट से मकामी इदारे मजबूत होंगे। हर यूनियन कौंसिल अपने फैसले करने में आज़ाद होगी। नून लीग कानून साजी में जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रही है। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब अवैस लग़ारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये इमरान न्याजी जब छुप के पेशावर बैठा था गिरफ्तारी के डर से और नाकाम लॉन्ग मार्च से भाग के जब ये वापस गया कि मुझे कहीं गिरफ्तार ना कर लिया जाए, तो पेशावर में ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एक दिन में कई करोड़ रुपए का पड़ता था। मगर अभी भी पुरानी वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। हुकूमत चली गई है, इसकी हेरा फेरी नहीं गई। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इतवार वाले दिन किसी ने लाहौर का अमन ख़राब करने की कोशिश की या शहरियों की ज़िंदगी में कोई रुकावट डालने की कोशिश की, तो हम कानूनी कार्रवाई करने का हक रखते हैं। इमरान न्याजी गिरफ्तारी के डर से खैबर पख्तूनख्वा में छुप कर बैठे रहे। सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल किए। हुकूमत चली गई मगर इनकी हेरा फेरी नहीं गई। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। पुरअमन एहतजाज सबका हक। एतवार के रोज़ लाहौर का अमन खराब करने की कोशिश हुई तो कानूनी कार्रवाई का इख्तियार रखते हैं। अता तारड़ की बोलने। इमरान खान और उनके साथी, जिनमें बिलखसूस फवाद चौधरी, वो प्रोवोक कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं। कहते ये कि न्यूट्रल किसको कहते हैं? फौज को कहते हैं। कह ये रहे हैं कि फौज का भी और अदलिया का भी सियासी किरदार है। और मिसाल क्या दे रहे हैं कि अगर ये किरदार है तो ये हुकूमतों के बनाने और गिराने के बाइस हैं। तो ये तो सीधी आर्टिकल 6 है। फवाद चौधरी कह रहे हैं फौज और अदलिया का भी सियासी किरदार है। इमरान खान इदारों पर मुसलसल हमलों में मसरूफ। सोशल मीडिया पर PTI एक्टिविस्ट भी बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बयानात पर आर्टिकल 6 लगता है। वज़ीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ के इल्जाम, 10 मुकदमात में इमरान खान की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूरी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का 5-5 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। PP 167 लाहौर में बदअमनी से मुतालिक केस हल्के पर खास नजर है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, एक्शन बहुत सख्त होगा। उम्मीदवार को समझा दें कुछ भी गलत किया तो नताइज इंतहाई संजीदा होंगे। केस निपटाने तक रिजल्ट भी जारी नहीं होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क, दोनों उम्मीदवारों की वीडियोस के फोरेंसिक की हिदायत। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात रोकने की इस्तदा मुस्तरद, पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक होगी। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 3 करोड़ से जायद बैलेट पेपर्स छप चुके। इंतजामात पर अब तक 50 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला, इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। 14 अजला में पोलिंग इतवार को शेड्यूल। सक्खर, नवाब शाह, लाड़काना और दीगर शहरों में कांटे के मुकाबले मुतवक्के। 1,14,74,000 वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन, सक्खर में 33 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। कामयाब करार पाने वालों में मियाँ बीवी भी शामिल। अरसलान शेख UC 10 से चेयरमैन बन गए। अहलिया अनम अरसलान UC 1 की चेयरपर्सन मुंतखब। NA 245 कराची में ज़िमनी इलेक्शन, 31 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। PTI के 4, MKM पाकिस्तान के 5, PSP के 3 उम्मीदवार शामिल। पीपल्स पार्टी 4, TLP 3 और नून लीग की जानिब से 2 नामजदगी फॉर्म जमा। फारूक सत्तार समेत 4 आज़ाद उम्मीदवार भी मुकाबले के ख्वाहिशमंद। जांच पड़ताल 27 जून को होगी। खैबर पख्तूनख्वा में कम अज़ कम माहाना उजरत 21 से बढ़ाकर 26,000 रुपए करने का ऐलान। सूबाई बजट की खुश उसलूबी के साथ मंजूरी खुशाइन। मुल्की वसाइल पर हमारा भी हक है जो छीन कर लेंगे। वज़ीर आला महमूद खान का असम्बली में इजहार ख्याल। पाकिस्तान नेवी बहरी सरहदों का दिफा करने वाली मजबूत फोर्स है जो हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी। तारीख, बहादुरी और कुर्बानियों की शानदार रवायात से भरी हुई है। आर्मी चीफ का नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार की तारीफ। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल भी चढ़ाए। आवाम को फिर झटका लगाने की तैयारी। अगले 3 माह के लिए बिजली 7 रुपये 91 पैसे तक महंगी होने का इम्कान। फी यूनिट टैरिफ 24 रुपये 82 पैसे हो जाएगा। माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर इत्तलाक नहीं होगा। कराची वालों पर बिजली गिरा दी गई। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में फी यूनिट कीमत 5 रुपये 27 पैसे बढ़ाने की मंजूरी। इत्तलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा। महंगाई के वार जारी, शरह 29.55% तक पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 32 अशिया की कीमतों में इजाफा। दालें, प्याज, घी, आटा, दूध, चावल और चाय की पत्ती शामिल। वफाकी अदारा शुमारियात की रिपोर्ट। अफगानिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद। पाकिस्तान पेश NDMA की जानिब से दूसरी खेप रवाना। खैमे और अशियाए खुरनोश शामिल। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारे से परिंदा टकराने का एक और वाकया। दोहा से आने वाली गैर मुल्की परवाज बर्ड हिट का शिकार। पायलट ने जहाज को बाहिफाजत उतार लिया।